गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर सेल को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमारा मेन इम्फेसिस था प्लास्टिड्स के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस, जिसको हम लोग 9 में भी पढ़े थे। एंड इन 9 क्लास वी ऑल नो दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ स्टोरेज, पैकेजिंग एंड रिलीज ऑर्गेनल ऑफ एनी प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट? First of all, the Golgi complex was discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi क्या है? He is an Italian neurologist who discovered it from the Purkinje cell of the cerebral cortex of the barn owl. ठीक है? And for this, Golgi got Nobel Prize in 1906. Okay? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे? सबसे पहले द ऑर्गेनल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय Camillo Golgi. The organelle was first discovered in 1898 by Camillo Golgi. ठीक है? Was an Italian neurologist. Italian neurologist है ना, जो नर्व्स के बारे में स्टडी करता है, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, इन द Purkinje cells, in the Purkinje cells of the cerebral cortex of the barn owl है ना। Golgi got Nobel Prize. Golgi got Nobel Prize in 1906. Golgi को नोबेल प्राइज मिला in 1906. Now Golgi complex का constituents क्या है? Golgi complex consists of flattened disc like cisternae. Golgi complex mainly consists of flattened disc like cisternae. Okay, Golgi complex consists of flattened disc. Golgi complex consists of flattened disc like cisternae, flattened disc like cisternae with dilated rims. उसका जो मार्जिन है वो dilated है, मतलब फैला हुआ है, and associated vesicles and tubules. So Golgi complex consists of flattened disc like cisternae, okay, with dilated rims, and it is associated with vesicles and tubules. We already have studied about the cisternae, tubules and vesicles in the topic called endoplasmic reticulum. Okay, अब इसके बाद क्या होगा? It means Golgi complex is found in all eukaryotic cells except
RBC except RBC of mammals, except RBC of mammals, except RBC of mammals, sperm of bryophytes and pteridophytes. RBC of mammals, sperm of bryophytes and pteridophytes, and seed tube of plants, ठीक है. टोटल यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, बट इट इज नॉट फाउंड इन आरबीसी ऑफ मैमल्स. ओके, नेक्स्ट इज स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एंड सीड ट्यूब ऑफ फ्लोएम, एंड it is completely absent. किसमें absent होगा? It is completely absent in prokaryotes. जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उसमें completely absent होता है क्या? Golgi complex. Okay, now the first electron microscopic study on the structure of Golgi complex was done by Flex and Dalton. Okay, when it is done? 1954. In which cell it is done? It is done in the epididymis of rat, which is a part of male reproductive organ of the rat. Okay, तो देखो, the first electron microscopic studies on the structure of Golgi apparatus. The first electron microscopic studies on the structure of Golgi apparatus have been done by two scientists. One is called Flex, F-L-E-I-X, and another is called Dalton. When 1954 in the epididymis of rat. Okay, the Golgi complex of rat is usually called dictyosome. Golgi complex of rat को क्या कहा गया? Dictyosome, and the term was coined by Peron-Sito. Okay, the Golgi complex of rat is usually called a dictyosome. A term coined by, कौन इस dictyosome term को coin किया था? The term coined by Peron-Sito, P-E-R-R-O-N-C-I-T-O. Peron-Sito नाम के साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म कॉइन किया था? डिक्टियोसोम. कब किया था? 1910. तो देखो फिर से एक बार, those who come late. The organelle was first discovered in 1898 by Camillo Golgi. Who was Camillo Golgi? He was an Italian neurologist who studied it in the Purkinje cell of the cerebral cortex of Barnard, and for this he got Nobel Prize in 1906. Next, Golgi complex consists of a flattened disc of cisternae, and along with it is also associated with
vesicles and tubules. Next, this Golgi complex was found in all eukaryotic cells except RBC of mammal, sperm cells of bryophytes and pteridophytes, and seed tube of phloem cells. But in case of prokaryote, Golgi complex is totally absent. Next point, the first electron microscopic study on the structure of Golgi complex done by Flex and Dalton. When? 1954. हाँ बोलो. किसमें? देखो मैमल्स के आरबीसी में इसलिए एब्सेंट है कि मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स टोटल डिसॉल्व हो जाता है एज द मैच्योर आरबीसी इज फॉर्म, बिकॉज द मेन एम ऑफ मैच्योर आरबीसी टू कंटेन एज मच एज पॉसिबल द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन. इसलिए टू कंटेन एज मच एज हेमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी का मेन फंक्शन है टू स्टोर, टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड सराउंड द ऑक्सीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. समझ आया? देखो मैमल्स में रेप्टिलिया क्या मैमल्स है? चलिए बताओ. हम बार बार बोल रहे हैं कि मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स ओनली. ये एक एक्सेप्शन है. सेल थ्योरी था कि कोई भी लिविंग सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियस होगा. इट मे बी इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड, बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. बट देयर इज ओनली टू सेल्स. फर्स्ट इज सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम एंड सेकेंड mature RBC of mammals where nucleus and Golgi apparatus both are absent. Okay, क्योंकि RBC का मेन यहाँ पे टारगेट होता है to have as much as surface area to contain hemoglobin, because जितना उसके पास ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. समझ आया? समझ गए? मेन उसका टारगेट क्या है? हेमोग्लोबिन को कंटेन करना. क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. अब क्लियर हुआ किरण? ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन. लोकेशन मतलब ये कहां पाया जाता है और किस टाइप में पाया जाता है. लोकेशन. लोकेशन क्या होगा? इन एनिमल सेल गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज आइदर सिंगल, मतलब अकेले पाया जाता है, और इट इज फाउंड इन सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स. अगर वो अकेले पाया जाएगा तो उसको कहेंगे लोकलाइज्ड, और अगर वो सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स. लोकलाइज्ड जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इट इज बेसिकली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, एंड इन लोकलाइज्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स. ओके, तो हम लोग लिखेंगे इन एनिमल सेल्स Golgi complex or apparatus. Golgi complex or apparatus is either single or consist of single connected complex or single connected complex. Now these two
conditions, these two conditions को क्या कहा जाता है, अभी बोले, are respectively called, these two condition means one is either single and the second condition is single connected complex, are called localized, okay. Localized means most vertebrate cells, okay, and diffused किसमें पाया जाएगा, invertebrates, most invertebrate cells, okay, most invertebrate cells, liver and nerve cells, most invertebrate cells, liver cells and nerve cells of vertebrates, nerve cells of vertebrates, okay. तो यानी अगर वो सिंगल है, आइसोलेटेड है, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड स्टेट, और अगर वो सिंगल कनेक्टेड स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड स्टेट, ओके. नाउ द localized complex, the localized organelle या Golgi complex is compact, okay. जो localized Golgi complex होता है वो क्या होता है, compact होता है, ठीक है. Now it generally occur at one end between the nucleus, okay. It generally occur at one end between the nucleus and the periphery of the cell. It generally occur at one end between the nucleus and the periphery. It generally occur at one end between the nucleus and the periphery. Now the diffused organelle है ना, diffused कौन है, single connected complex. The diffused organelle, the diffused organelle, that is Golgi complex, forms a network. और जो diffused Golgi complex है ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क. एग्जाम्पल अराउंड द न्यूक्लियस इन नर्व सेल्स, अराउंड द न्यूक्लियस इन नर्व सेल्स, ठीक है. ये हो गया Golgi कॉम्प्लेक्स का डिटेल, ठीक है. अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि Golgi कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या है, नंबर क्या है, ये सब, ठीक है. तो देखो इसके बाद नेक्स्ट है प्लांट सेल में. ये तो हम लोग जो भी पढ़े किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, एनिमल सेल के कॉन्टेक्स्ट में. प्लांट सेल में Golgi कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इन अ नंबर ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट. Golgi कॉम्प्लेक्स आर फाउंड एज अ नंबर ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट. और प्लांट सेल में वैसे Golgi कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम. क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम. In plant cells, Golgi complex is formed of a number of unconnected units. Number of unconnected units called dictyosomes. Number of unconnected units called dictyosomes. ठीक है, called dictyosomes. Now
कॉमनली देयर आर, कॉमनली कितना डिक्टियोसोम्स हो गए एक प्लांट में? देयर आर 10 to 20 डिक्टियोसोम्स पर प्लांट सेल, पर प्लांट सेल। हर एक प्लांट सेल में 10 to 20 डिक्टियोसोम्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीवर सेल जो है, इट पोजेस मे बी अप टू 50 यूनिट्स ऑफ गोल्जी apparatus। अ लीवर सेल में possess up to 50 units of, a liver cell may possess up to 50 units of Golgi apparatus। क्या possess करेगा? 50 units of Golgi apparatus, जिसको क्या कहा जाएगा? called Golgisome, called Golgisome, ठीक है। I am again repeating this whole first location. In animal cell, this Golgi complex or apparatus are either found singly or in a single connected state. When they are found single, they are called localized, and when they are found in single connected state, they are called diffused. This localized Golgi apparatus is compact, okay, and it is found in vertebrates, whereas this diffused Golgi complex is found basically in invertebrates and liver and nerve cells of vertebrates. Now, in plant cell, Golgi complex is formed of a number of unconnected units of Golgi complex, and that is called dictyosome. Commonly, there are 10 to 20 dictyosome per plant cell. Okay. In liver cell, ये point to be noted. In liver cell, a liver cell may possess up to 50 units of Golgi apparatus, and this is called Golgisome. Okay, so this is all about the location. Now we must know the structure of the Golgi complex, or we say the ultrastructure of the Golgi complex. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है ना? आगे बढ़े। अब लोकेशन के बाद स्ट्रक्चर। Next, structure of Golgi complex. Golgi complex. Okay. First, Golgi body or complex consists of 3 to 20 flattened sacs with bulging edges called cisternae. Okay, Golgi bodies consist of 3 to 20 flattened sacs है ना। फ्लैट मतलब हो गया चपटा, सैक मतलब थैली। फ्लैटेंड सैक्स, ओके, विथ बल्जिंग एजेस called cisternae. Okay, now these membrane, ये जो तुम्हारा सिस्टर्नी है उसका जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन लाइक स्मूथ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सिस्टर्नी का मेम्ब्रेन है, लाइक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम, इसलिए इसका सरफेस भी स्मूथ होता है। अगर इसमें राइबोसोम मौजूद रहता देन सिस्टर्नी आउटर सरफेस इज रफ। ओके, नाउ ईच सिस्टर्नी इज, हर एक सिस्टर्नी क्या है, 15 to 20 नैनोमीटर थिक, 15 to 20 नैनोमीटर थिक। Each cisterni is 15 to 20 nanometer thick and separated from other cisterni by 20 to 30 नैनोमीटर। मतलब समझ आया, हर एक सिस्टर्नी का जो थिकनेस है वो 15 to 20 नैनोमीटर है। और जैसे सिस्टर्नी 1 2 ऐसे इस तरह से सिस्टर्नी जो होता है इस तरह से अटैच रहता है, तो एक से दूसरे सिस्टर्नी के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप कितना है, 20 to 30 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, द मार्जिन ऑफ द सिस्टर्नी, द मार्जिन ऑफ द, देखो ये मार्जिन जो है पूरी तरह से ऐसा नहीं है, ये इस तरह से, यानी आर ऑफन कर्व, गिव अ कप और प्लेट लाइक दिस लाइक स्ट्रक्चर। द मार्जिन ऑफ द सिस्टर्नी आर often curved, giving the margin of the cisterni are often curved, giving the Golgi complex a cup-like, or bowl-like appearance। ठीक है, बाउल है ना, कटोरा जैसा या कप जैसा अपीयरेंस देता है, क्योंकि ये कभी भी सिस्टर्नी स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कर्व, बाउल लाइक अपीयरेंस। नाउ मोस्ट cells have only one Golgi complex, but some may have several। ठीक है, ज्यादातर सेल में एक ही Golgi कॉम्प्लेक्स, सिंगल Golgi कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ओकेजनली कुछ सेल में सेवरल Golgi कॉम्प्लेक्स भी होता है। हैव सेवरल Golgi कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, द Golgi complex is more extensive in the cells that secrete protein into the extracellular fluid। Okay, the Golgi complex is more extensive, मतलब ज्यादा फैला हुआ होता है, more extensive in the cell that the Golgi complex is more extensive in the cell that secrete protein into the extracellular fluid। The Golgi complex is more extensive in the cell that secrete protein into the extracellular fluid। ठीक है, this fact
यही देखो, जो सेल सिक्रीट करता है प्रोटीन को एक्स्ट्रा एज अ इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, मोर एक्सटेंसिव है। ये क्लू देता है कि इस ऑर्गेनल का सेल में क्या रोल है। ठीक है, दिस फैक्ट गिव्स द क्लू, दिस फैक्ट गिव्स द क्लू, व्हाट क्लू टू द, this facts gives clue to the organelles role in the cells, organelles role in the cells। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ओवरऑल आइडिया हो गया। नाउ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकंड इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज वेसिकल्स, थर्ड इज टिब्यूल्स, and fourth is Golgian vesicle. Of one by one we should discuss all about these 4 parts of the Golgi complex. ठीक है, usually Golgi complex is made up of 4 parts। यूजुअली गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकेंड है वेसिकल्स, थर्ड है ट्यूब्यूल्स एंड द फोर्थ इज गोल्जियन वेसिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टर्नी के बारे में। व्हाट इज सिस्टर्नी? गोल्जी complex consist of stack of, Golgi complex जो है it consist of stack of 3 to 20, minimum 3 maximum 20 membrane bound saccules, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्यूल्स और सिस्टर्नी। ठीक है, मैक्सिमम 3 to 20 मेम्ब्रेन बाउंड सैक्यूल्स और सिस्टर्नी एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ओके, नाउ अनसिस्टर्नल डिक्टियोसोम, ओके, इसमें पाया जाता है फाउंड इन फंजाई। अनसिस्टर्नल डिक्टियोसोम आर found in fungi. Okay, now the membrane of the cisternae are smooth because they does not bound with ribosome, but they are of variable thickness। इसका जो thickness है वो vary करता है। ठीक है, बेसिकली ये 15 to 20 नैनोमीटर थिकनेस होता है और एक से दूसरे सिस्टर्नी के बीच जो इंटरसिस्टर्नल स्पेस है इट इज बिटवीन 20 to 30 नैनोमीटर। तो लिखेंगे the membrane of the cisternae, are smooth. The membrane of the cisternae are smooth but of variable thickness. The membrane of the cisternae are smooth but of variable thickness. Okay, now it encloses, ये enclose करता है, घेर के रखता है ल्यूमेन को। It encloses a lumen, a
ल्यूमेन खाली जगह को घेर के रखता है ऑफ 60 to 90 एंगस्ट्रॉम। ये जिस ल्यूमेन को वैक्यूम स्पेस को घेर के रखता है इट इज 60 to 90 एंगस्ट्रॉम। नाउ ल्यूमेन contain what? Lumen contain a fluid substance, contain a fluid substances or matrix. Lumen contain a fluid substances or matrix, full stop. The intercisternal space, the intercisternal space contain thin layer of cytoplasm. The intercisternal space जो होता है ये कंटेन करता है thin layer of cytoplasm having parallel fibrils, दो सिस्टर्नी के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरसिस्टर्नल स्पेस। और ये क्या कंटेन करता है? पैरेलल fibrils. Now the cisternae are frequently curved. सिस्टर्नी जो है वो frequently curved होता है to give the cisternae are frequently curved. The cisternae are frequently curved to give different polarity. The cisternae are frequently curved to give a definite polarity to the Golgi apparatus. ठीक है, सिस्टर्नी जो है वो लगातार ऐसे कर्व्ड होता है जिसके कारण इस Golgi apparatus को एक डिफरेंट पोलैरिटी मिलता है। प्लस ठीक है, वन फेस को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस और दूसरे फेस को हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। जो फॉर्मिंग फेज है वो कन्वेक्स होता है और जो मैच्योरिंग फेज है वो कनकेव होता है। ठीक है, आप लिखेंगे वन फेस इज कन्वेक्स, वन फेज इज कन्वेक्स कॉल्ड फॉर्मिंग फेज। इसको एंट्री फेज भी बोलते हैं कुछ बुक में। फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज को ब्रैकेट में बोलते हैं, लिख देते हैं एंट्री फेज। एंड द अदर फेज इज कनकेव। अदर फेज क्या है? कनकेव है, कॉल्ड क्या? मैच्योरिंग फेज, कॉल्ड मैच्योरिंग फेज। इस मैच्योरिंग फेज को कहा जाता है एग्जिट फेज, एग्जिट फेज। ठीक है, तो एक फेज है फॉर्मिंग फेज और दूसरा फेज है मैच्योरिंग फेज। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ द मैच्योरिंग फेज। ठीक है, जो मेम्ब्रेन का मैच्योरिंग फेज है इट इज 7 to 8 नैनोमीटर इन थिकनेस, while the membrane of the forming phase is 4 nanometer in thickness. The membrane of maturing phase is 7 to 8 nanometer in thickness, 7 to 8 nanometer in thickness, and the membrane of forming phase is 4 nanometer in
in thickness. The membrane of maturing phase is 7 to 8 nanometer and the membrane of forming phase is 4 nanometer in thickness. ठीक है, ये किसमें होगा? सिस्टर्नी में. अब बोलो. देखो, अनसिस्टर्नल मतलब हो गया द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, यानी उसमें सिस्टर्नी का ज्यादा कोई रोल नहीं होगा. अब समझ आया? ठीक है, याद करो हम लोग रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखे थे. उसमें क्या था? एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का बना था और दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स का बना था. तो जो तुम्हारा सिर्फ वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का बना, यानी उसमें सिस्टर्नी का कोई रोल है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनसिस्टर्नल. समझ गए? अब देखो नेक्स्ट होगा कि अभी तुमको बताएं कि जो मेम्ब्रेन का थिकनेस है वो 2 है. फॉर्मिंग फेज का थिकनेस है 4 नैनोमीटर और जो मैच्योरिंग फेज है उसका थिकनेस है 7 to 8 nanometer. Now the forming phase क्या है? The forming phase receives vesicles. The forming phase receives vesicles from इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो फॉर्मिंग फेज है ये रिसीव करेगा वेसिकल्स को फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद देयर कंटेंट, ये जो वेसिकल्स है, ठीक है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा है वो थ्रू द इंटरसिस्टर्नल स्पेस फाइनली मैच्योरिंग फेज तक जाएगा. ठीक है, और वहां से फिर पैकेजिंग होकर वो रिलीज होगा. तो लिखेंगे देयर content pass through various cisternae. Their content pass through various cisternae with the help of what? With the help of coated vesicles. Their content pass through various cisternae with the help of coated vesicles. Okay, and अभी जस्ट बताएं इंटरसिस्टर्नल चैनल्स, या उसको लिख दो कनेक्शंस. बात एक ही है. ठीक है, क्योंकि सभी चैनल एक दूसरे के साथ सिस्टर्नी अटैच है. इंटरसिस्टर्नल चैनल कनेक्शंस. अब लिखेंगे these ultimately reaches what? These ultimately reaches the maturing phase. अभी अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा? मैच्योरिंग फेज में. और मैच्योरिंग फेज में जैसे ही पहुंच जाएगा where they budded off, वो रिलीज होगा एज अ सिक्रेशन. where they budded off as a सिक्रेशन. ठीक है, सिक्रेशन, कोटेड और गोल्जियन वेसिकल्स और वैक्यूल्स. और जहां से वो गोल्जियन वेसिकल्स और वैक्यूल्स के रूप में रिलीज होगा. while passing through the apparatus biochemicals are
variously transferred. variously transferred. ओके, ये हो गया सिस्टर्नी। अब क्या होगा सिस्टर्नी के बाद? टिब्यूल्स। हम लोग टिब्यूल्स का भी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। ये सिंगल होगा या ब्रांच होगा, इस तरह से पढ़े थे। एक ऐसे पढ़े थे और एक ऐसे पढ़े थे, याद करो, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम लोग टिब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टिब्यूल्स में क्या होगा? इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क टुवर्ड्स इट फॉर्म्स a complicated network towards periphery. It forms a complicated network towards periphery and maturing phase of the it forms a complicated network towards periphery and maturing phase of the apparatus. Maturing phase of the apparatus. Okay, now what happens? Actually tubules, है ना, कैसे अराइज होता है? arises due to the actually जो ये tubules है, it arises due to the fenestration of the cisternae. Fenestration of the cisternae. सिस्टर्नी का जो आउटर पार्ट है उसी के मॉडिफिकेशन से ये ट्यूब्यूल्स का अराइजमेंट होता है या अराइज करता है. इट इज कॉल्ड फेनेस्ट्रेशन ऑफ सिस्टर्नी. नाउ these have means tubules have a diameter of 30 to 50 नैनोमीटर. ये जो tubules है इसका डायमीटर है 30 to 40 नैनोमीटर. नेक्स्ट the tubules interconnect. tubules क्या करता है? it interconnect different सिस्टर्नी. ट्यूब्यूल्स जो है ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट सिस्टर्नी को. सबसे पहले ट्यूब्यूल्स क्या है? इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी. सेकेंड, इट एक्चुअली द ट्यूब्यूल जो है इट इज अराइज ड्यू टू द फेनेस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द सिस्टर्नी. थर्ड, दिस ट्यूब्यूल्स हैव अ डायमीटर ऑफ 30 to 50 नैनोमीटर. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस ट्यूब्यूल्स इंटरकनेक्ट डिफरेंट सिस्टर्नी. अब सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया. नाउ द थर्ड इज वैक्यूल्स और वेसिकल्स. Vesicles. Third, vesicles में क्या होगा? These are small sac of 20 to 80 nanometer in diameter. These are small sacs. These are small sacs of 20 to 80 nanometer in diameter. ठीक है, ये तुम्हारा स्मॉल छोटा सा थैली है जिसका नैनोमीटर है 20 to 80 नैनोमीटर इन डायमीटर. नाउ द वेसिकल्स आर फाउंड attached. The vesicles are found attached to the tip of the tubules. These vesicles are found attached कहाँ? To the tip of the tubules at various level. At various levels. Okay.
तो वेसिकल्स जो है वो स्मॉल सैक है जो 20 to 80 नैनोमीटर इन डायमीटर है। नेक्स्ट, दिस आर फाउंड अटैच टू द टिप ऑफ द ट्यूब्यूल्स एट वेरियस लेवल। ठीक है, कहां पे? इन द नेटवर्क, इन द नेटवर्क। व्हाट नेटवर्क? गोल्जी नेटवर्क, इन द नेटवर्क। नाउ there are two types of vesicles. First, the coated vesicles. The coated vesicles. Coated vesicles क्या होगा? Have rough surface. Coated vesicles में रफ सरफेस होता है, मीन्स दे इलैबोरेट मेम्ब्रेन प्रोटीन, दे इलैबोरेट मेम्ब्रेन प्रोटीन। और दूसरा क्या है कोटेड वेसिकल्स के बाद? स्मूथ वेसिकल्स। द स्मूथ वेसिकल्स, द स्मूथ वेसिकल्स have smooth surface. The smooth vesicles have smooth surface. They contain secretory substances. They contain secretory substances and are They contain secretory substances and are known as secretory vesicles. जो स्मूथ वेसिकल्स है उसका स्मूथ सरफेस होता है, जबकि कोटेड वेसिकल्स का रफ सरफेस होता है। They elaborate membrane protein, coated vesicles, and they contain secretory substances and are known as secretory vesicles. ठीक है। और फोर्थ होगा गोल्जियन वेसिकल्स। फोर्थ इज गोल्जियन वेसिकल्स। ओके, गोल्जियन वेसिकल्स। नाउ व्हाट इज दिस गोल्जियन वेसिकल्स? ओके, गोल्जियन वेसिकल्स जो है these are the extended part of the cistern. ये जो गोल्जियन वेसिकल्स है these are the extended part of the cistern which become modified to form vacuoles. ठीक है, तो गोल्जियन वेसिकल्स क्या है? एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सिस्टर्नी है विच बिकम मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड होकर क्या फॉर्म करेगा? वैक्यूल्स। नाउ इट डेवलप्स फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज। कहां से डेवलप होगा? मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट डेवलप फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? It contain amorphous or granular substances. It contain amorphous or granular substances. Now, some of the Golgian vesicles function as lysosome. ओके, तो ये हो गया Golgian vesicle का। What is Golgian vesicle? These are extended part of the cisternae first. Second, which become modified to form vacuoles. ये modified होके vacuoles बनाता है।
From where it is developed? It is developing from the maturing phase of Golgi complex or Golgi body. Next, this Golgian vesicle contain amorphous or granular substance. And the last of all, some of the Golgian vesicles function as lysosome, what we call the suicidal bag. Okay, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब लास्ट, हाँ बोलो। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ गॉल्जियन वेसिकल। ठीक है, functions of Golgian vesicles. Functions of Golgian vesicles. सबसे पहले secretion. First function is secretion. ठीक है, जितने भी ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑल ग्लैंड्यूलर सेल डिपेंड्स अपॉन द गोल्जियन वेसिकल। ऑल गोल्ज क्या है, जितने भी ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं, वेदर इट इज इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे डिपेंड्स ऑन द गोल्जियन वेसिकल और गोल्जियन बॉडी और गोल्जियन कॉम्प्लेक्स फॉर कंसंट्रेशन एंड पैकेजिंग देयर प्रोडक्ट्स इनसाइड अ सॉल्युबल प्रोटीन कोट। ऑल glandular or glandular cells depends on what? Golgian vesicles. Golgian vesicles for concentrating, Golgian vesicle for concentrating and packaging, concentrating and packaging their product. ठीक है, तो concentrating and packaging their product inside a soluble protein coat. Coat मतलब covering. Inside a soluble protein coat which is visible in the dark staining. ठीक है, visible in dark staining. Staining का मतलब होता है रंग करना. Visible in the dark staining under electron microscope. Under electron microscope. Okay, now these are sent out of the cell through exocytosis or reverse pinocytosis. These are sent out of the cell through exocytosis or reverse pinocytosis, है ना? Pinocytosis means release of liquid material. Second, secretions के बाद होगा glycoprotein and glycolipids. Glycoprotein and glycolipids. Second is glycoprotein and glycolipids. Now what is glycoprotein and how glycolipid is formed? Protein are synthesized by rough endoplasmic reticulum and lipid are synthesized by smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, on reaching the cisternae of Golgi complex they are combining with glycogen. They are combining with glycogen which is a carbohydrate to form glycolipid and glycoprotein. देखो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है प्रोटीन और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है लिपिड.
ये दोनों ही कहा जा रहा है सिस्टर्नी ऑफ Golgi complex. They reach to the cisternae of Golgi complex, and in this Golgi complex both of them combined with carbohydrate. दोनों किसके साथ कंबाइन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट के साथ. क्या फॉर्म करने के लिए? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है. थर्ड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. क्या है? मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अदर देन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च are synthesized inside the Golgi complex. Most of the complex carbohydrate means basically polysaccharides, okay, other than what? Other than glycogen and starch are synthesized under Golgi complex. Under Golgi complex. Okay. जैसे एग्जांपल है पेक्टिक कंपाउंड्स. पेक्टिक कंपाउंड्स. ठीक है. म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये हो गया पहला फंक्शन, सिक्रेशन. सेकेंड फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. थर्ड फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. फोर्थ फंक्शन इज हार्मोन. प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय इंडोक्राइन ग्लैंड इज मॉडिफाइड थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ओके. फोर्थ इज हार्मोन. हार्मोन्स. Production of hormone by endocrine glands. Production of hormone by endocrine glands is modified थ्रू इट. ठीक है. जो भी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड, उसको मॉडिफाइड कौन करता है? गोल्जियन वेसिकल या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो बोलो. ठीक है. नेक्स्ट, एक्रोसोम फॉर्मेशन. एक्रोसोम क्या है? इट इज फाउंड एट द हेड ऑफ द स्पर्म. ठीक है. मैमेलियन स्पर्म जो होता है उसके हेड में पाया जाता है एक्रोसोम, एंड दिस एक्रोसोम इज फॉर्म बाय द गोल्जियन कॉम्प्लेक्स. Okay. Fourth, fifth, acrosome formation. Acrosome formation. Okay. Acrosome formation का क्या होगा? एक्सो लिखेंगे. Acrosome is synthesized. Acrosome is synthesized by Golgi apparatus. By Golgi complex apparatus. Acrosome is synthesized by Golgi complex with the help of इट्स वेसिकल्स. अब सवाल इस एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम हेल्प्स स्पर्म. एक्रोसोम क्या करता है? ये स्पर्म को हेल्प्स स्पर्म
टू पेनिट्रेट द ओवम। ओवम के अंदर, ओवम से बाहर में दो लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा। इस लेयर को जब तक स्पर्म डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तब तक वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं हो सकता है, और इसलिए इसको क्या चाहिए, एक्रोसोम का मदद चाहिए। एंड दिस एक्रोसोम इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स with the help of its vesicles. Next is vitellogenesis. Now अब क्वेश्चन है कि vitellogenesis क्या है, ठीक है। इन मैमेलियन oocytes मीन्स ओवम, और जिसको हम सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। मैमेलियन oocytes गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज द सेंटर अराउंड विच यॉक इज डिपोजिटेड, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है वाइटेलोजेनेसिस। ओके, मैमेलियन नहीं, एनिमल ही लिख तो बेटर रहेगा। इन एनिमल oocytes, ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाइटेलोजेनेसिस। ओके, एंड द लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। Of lysosome. Okay, formation of lysosome. Some of the vesicles or vacuoles. Some of the vesicles or vacuoles of the Golgi apparatus क्या स्टोर करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स obtained through endoplasmic reticulum in the inactive state. Okay, अब क्या होता है, it acts as a primary lysosome. ये कैसे काम करता है, it acts as a primary lysosome. ठीक है, तो बोला गया कि वैक्यूल्स या वेसिकल्स जो होता है गोल्जी एपरेटस के पेरिफेरी में, दे स्टोर करता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को, जो उसे किससे मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली हम बोल सकते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में मिलता है। एंड दिस टाइप ऑफ वेसिकल्स विद इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम आर एक्टिंग एज व्हाट, प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, so that's all about the function of Golgian vesicles, Golgi complex, Golgi apparatus, या जिसको हम प्लांट में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ओके, समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइसोसोम को कंटिन्यू करेंगे। लाइसोसोम, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।